দেখুন আমাৰ যিহেতু এই ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকী তেওঁ মানে হঠাৎ আমাক ক'লে যে এই ইয়াত আহিম বুলি অসমলৈ আহিম বুলি ক'লে। আজি 4 দিন আগতে তেওঁ ক'লে। হঠাৎ আমি যিমানখিনি পাৰে কৰিছোঁ, গোটেই আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকক মাতিলোঁ, ডিষ্ট্ৰিক্টবোৰৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটেৰীবোৰ আহিছে আৰু আমাৰ মেইন কমিটিখন যিটো ষ্টেটৰ কমিটিখনো আহিল আৰু আলোচনা হ'ল। আলোচনাত আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰোঁ পিছৰ পৰ্যায়ত, এইবাৰ ইলেকশ্যনত আমি কি কৰিলোঁ, সেই গোটেইবোৰ পৰ্যালোচনা এটা হৈছিল। তেনেকুৱা ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষগৰাকী যিহেতু এইবাৰ আপোনাৰ যোৱা পঞ্চায়তত নিৰ্বাচন খেলা বহুকেইগৰাকী প্ৰতিনিধিৰ লগত কথা বতৰা পাতিছে, ইয়াৰ ফলত আগন্তুক যি নিৰ্বাচন আছে 2026 তাত কিবা প্ৰভাৱ পৰিব? বহুত পৰিব। আমি আমাৰ নিজৰ যিটো কৌশল, এইবাৰ আমি কেনেকৈ কি কৌশল কৰি আমি ইয়াত এইবাৰ যিখিনি ভোট পালোঁ তাতকৈ কিমান বঢ়াব পাৰিম সেইবোৰ চেষ্টা কৰিম। এইটোৰ ওপৰত এইখিনি সময়তে এটা খবৰ ওলাইছে, মাদানীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ বহুত বেয়া মন্তব্য কৰিছে আৰু ইমানৰ পাছতো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে কংগ্ৰেছ মৌন হৈ আছে, কংগ্ৰেছ মাদানীৰ সমৰ্থক, কংগ্ৰেছে পাকিস্তানৰ সমৰ্থক, কংগ্ৰেছ অমুক তমুক, কংগ্ৰেছ মিয়াৰ সমৰ্থক, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈ আছে। আপুনি কি ক'ব এইটো বিষয়ে? তেওঁতো এইকেইদিনটো বহুত কিবাকিবি বকিয়ে আছে, সেইটোৰ ওপৰত মই কোনো বক্তব্য নাৰাখোঁ। তেওঁৰ যিটো মন যায় সেয়ে কৈ থাকে। আজিকালিতো তেওঁৰ কথা আজি যদি কিবা এটা কয়, কালি কিবা এটা কয়। সেইকাৰণে তেওঁৰ মতে চলি থাকক, আমি আমাৰ মতে আগবাঢ়ি যাম, আমি আমাৰ সংগঠন সক্ৰিয় কৰি গৈ থাকিম আৰু অহা 26 চনত আমি গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত এখন শক্তিশালী চৰকাৰ গঠন কৰিম আৰু তাত কোনো ধৰণৰ ইয়াত এতিয়া যি ধৰণৰ দুৰ্নীতি হৈ আছে, দুৰ্নীতিমুক্ত এখন চৰকাৰ আমি গঠন কৰিম। আপুনি যিহেতু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পঞ্চায়তী ৰাজৰ আপুনি সভাপতি, গতিকে আপুনি এই গোটেই অসমৰ বিভিন্ন জিলাই গোটেই গ্ৰামত আপুনি সোমাই গৈছেনে? আপোনালোকৰ প্ৰতিনিধি আছে? হয়। আমাৰ 25খন জিলাৰ প্ৰতিটো সমষ্টিত আমি ঘূৰিছোঁ আৰু প্ৰতিটো সমষ্টিতে আমাৰ সংগঠন আছে। আমাৰ মই অহা আজি এবছৰ মানহে হৈছে। এই এবছৰতে আমি প্ৰায় 6,000 পৰা 10,000 মান আমাৰ কৰ্মী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আগন্তুক আমি 26 চনৰ ইলেকশ্যনৰ আগত আমি 1 লাখ আমাৰ টাৰ্গেট, 1 লাখ সদস্য আমি আমাৰ কমিটিত আমি ৰাখিম আৰু হ'ব আমাৰ 1 লাখ সদস্য হ'ব। देखो, पंचायती राज का जो सपना था वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में ताकत देने का था। महात्मा गांधी जी इस देश में सिर्फ आज़ादी नहीं, वो स्वराज चाहते थे। उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 1959 में पंचायती राज की नींव रखी और जनप्रतिनिधियों को संवैधानिक अधिकार देने के लिए जो पहला सपना था वो राजीव गांधी जी ने लिया। उस सपने को वो राज्यसभा में अपने समय में टूटता हुआ देख के गए, उनकी हत्या हुई। उसके बाद तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने 73वें 74वें संवैधानिक संशोधन में जनप्रतिनिधियों को ताकत देने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की सोच से अनुसूची 11 के अंदर 29 विषयों का और अनुसूची 12 में 18 विषयों का अधिकार जनप्रतिनिधियों को दिया। सबसे बड़ी चुनौती आज पूरे देश में देखने को ये मिलती है कि जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें होती हैं वहाँ चुनावों में किसी प्रकार की कोई शर्तें नहीं रखते। अब आप मानिए कि लोगों की वोट के द्वारा देश का सांसद चुना जाता है, लोगों की वोट के द्वारा MLA चुना जाता है और लोगों की वोट के द्वारा ही पंचायती राज का जनप्रतिनिधि चुना जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की शर्तें, कहीं पे 3 बच्चों की शर्तें हैं कि जिनके पास 3 बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकता, कहीं पे मिनिमम शैक्षणिक योग्यता कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास 8वीं पास है। मैं ये नहीं कहता कि कोई आदमी पढ़ा लिखा ना हो, अच्छी बात है, पढ़े लिखे, लेकिन जो शर्तें देश की लोकसभा के सदस्य और देश की राज्य की विधानसभा की सदस्य के ऊपर नहीं है, वो पंचायती राज के ऊपर क्यों इम्पोज हो? या तो दोनों से हटाओ या दोनों के ऊपर लागू करो। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अलग अलग जो ताकतें देश के संविधान में दी है, भारतीय जनता पार्टी की जिस भी राज्य के अंदर सरकारें हैं उन्होंने उन सारी चुने हुए जनप्रतिनिधियों की ताकत को निरस्त करने का काम किया है। न फंड्स के ऊपर उनका कंट्रोल है, न फंक्शन के ऊपर उनका कोई कंट्रोल है, न फंक्शनरी उनके हाथ में है। तो जनप्रतिनिधि बेचारा लाचार और बेसहारा होके, मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि जनप्रतिनिधि को भारतीय जनता पार्टी ने भिखारी हाथ में कटोरा देने का काम किया है कि वो लगातार
दूसरे वो भी जनप्रतिनिधि है और वो कहीं लोकसभा सांसद, कहीं राज्यसभा सांसद, कहीं विधायक के पास वो बेचारा हाथ फैला के मांगने के लिए निकलता रहता है। अदरवाइज उसके गांव के अंदर विकास का कार्य नहीं होगा। आज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन इस ललक के साथ कि देश में स्वराज हो और 40 लाख से ज़्यादा जनप्रतिनिधि, जिसके अंदर हमारे समाज के एससी वर्ग, हमारे पिछड़े वर्ग, महिला, आदिवासी की भागीदारी जहाँ पे मुख्य रूप से सुनिश्चित हुई है, ऐसी पंचायती राज व्यवस्था को हम संवैधानिक अधिकार पूर्ण रूप से दिलाने के लिए, उसकी समझ गांव के ग्रामीण अंचल में बढ़ाने के लिए हमारा पूरा संगठन निकलेगा, गांव-गांव में जाएगा और ग्राम सभाएं जो पंचायती राज व्यवस्था से भी आगे बढ़ के हमारे गांव के अंदर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी को दिखाती हैं, जिसके अंदर गांव का आम आदमी अपनी बात को रखने में सक्षम होता है और वहाँ पे उसको लगता है कि ये मेरा देश है, मेरा गांव है और इस गांव के विकास में मेरी भी भूमिका है, तो मुझे भी अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म मिला, तो वो गांव की ग्राम सभाएं हैं। तो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन वही महात्मा गांधी जी के, नेहरू के, राजीव गांधी जी के सपने को लेके ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए निकलेगा। और जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, वो सड़कों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों के खिलाफ और जो सत्ता के सेंट्रलाइजेशन के खिलाफ निकले हुए हैं, उसी अनुरूप असम के अंदर यहाँ के पीसीसी अध्यक्ष गौरव गोगोई जी, उनके नेतृत्व में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन आगे अपनी गतिविधियों को बढ़ाएगा। Stay informed, stay ahead. News Any 365